یہ زندگی تجھ بن بتا بسر کیسے ہو، یہ زندگی تجھ بن بتا بسر کیسے ہو، تڑپتا ہوں تیرے لیے تجھے خبر کیسے ہو، یہ زندگی تجھ بن بتا بسر کیسے ہو، تڑپتا ہوں تیرے لیے تجھے خبر کیسے ہو، خدا بنا دے مجھے کاجل تیری آنکھوں کا، خدا بنا دے مجھے کاجل تیری آنکھوں کا، تو بتا میری دعاؤں میں یہ اثر کیسے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مہر پوش کی ایپیسوڈ 6 میں آپ دیکھیں گے کہ جب شاہ جہاں کو مہروں کی طلاق کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے، لیکن ناظرین اب شاہ جہاں خود کو کس طرح سے بچا سکتا ہے، کیونکہ ناظرین مہروں کی ساری بربادی کا ذمہ دار تو وہ خود ہے، اور مہروں شاہ جہاں سے کہتی ہے کہ جس دن مجھے اس شخص کا پتہ چل گیا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ تو شاہ جہاں مزید ڈر جاتا ہے کہ کس طرح ہم نے پورے خاندان کو اپنے مذاق میں برباد کر دیا۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ غلط کیا مہروں کے ساتھ، اور ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے، جس پر اس کے دوست کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہم پورے محلے میں بدنام ہو جائیں گے۔ جواب میں شاہ جہاں چیخ کر کہتا ہے کہ وہ جو بدنام ہو گئی ہماری وجہ سے اس کا کیا ہوگا۔ ناظرین اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مہروں کی ماں اس کی شادی کا کارڈ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ اور ماسٹر صاحب بھی اپنی بیگم کو دیکھ کر اس غم میں شریک ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر رونے لگ جاتے ہیں۔ مہروں اپنے ماں باپ کو اس تکلیف میں دیکھ کر بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی ان کا دکھ۔ اسے لگتا ہے یہ اگر خود کو ختم کر لے گی تو اس کی ساری تکلیفیں بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، نہیں تو اس پر لگے بدنامی کے داغ اس کی بہن تک جائیں گے۔ وہ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، جو بھاگ کر اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسے روک لیتی ہیں خودکشی کرنے سے۔ وہ روتی ہیں اور مہروں کو نیچے اتارتی ہیں تو مہروں چیخنے لگ جاتی ہے اور چلا چلا کے اپنی ماں سے اپنی بہن سے کہتی ہے کہ میں نہیں ہوں بد کردار۔ مہروں کے والد بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور مہروں کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ تم ایسی نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے بہت جلد تمہارے مجرم ہمارے سامنے آ جائیں گے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو سزا دوں گا۔ ناظرین دوسری طرف شاہ جہاں جو کہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے ہمیں پوری سچائی ماسٹر صاحب کو بتانی ہوگی تاکہ مہروں جی پر سے یہ بدنامی کا داغ اتر جائے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ یہ بات ماسٹر صاحب کو بتائے گا تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ تو ایسے چھوڑیں گے نہیں کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم میری بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ شاہ جہان کا صرف خواب ہو سکتا ہے یا پھر اس کا خیال، لیکن ناظرین یہ خیال، یہ باتیں صرف شاہ جہان کی اپنی سوچ میں ہیں، کیونکہ حقیقت اتنی جلدی سامنے نہیں آ سکتی۔ ماسٹر صاحب کے ڈرامے کا یہ سین بتا رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ شاہ جہان ایسا سوچ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا خواب ہوتا ہے، یہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر اس نے ماسٹر صاحب کو ساری حقیقت بتا دی تو ماسٹر صاحب اس کے ساتھ اس طرح سے ری ایکٹ کریں گے۔ ناظرین مہروں کے ماں باپ بے بس ہو چکے ہیں، وہ مہروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور مہروں بھی اسی ڈپریشن میں آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے مہر پر ڈرامے کے ایپیسوڈ 6 کے پرومو میں دیکھا کہ کس طرح سے مہروں کی والدہ اس کو خودکشی کرنے سے روکتی ہیں۔ ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا جب شاہ جہان اس مسئلے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو شاہ جہاں کے دوست بھی اس سے الجھ پڑتے ہیں کہ ہم پورے محلے میں بدنام ہو جائیں گے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتے ہیں۔ تو شاہ جہاں کو اس بات سے بہت غصہ آتا ہے، مگر ناظرین شاہ جہان نے بھی مہروں کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، اس کو تو شاہ جہان نے برباد ہی کر دیا، کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ناظرین مہر پوش ڈرامے کی جو اگلی اقساط ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ ناظرین اگلی اقساط میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہروں شاہ جہان کو بلاتی ہے اور شاہ جہاں سے کہتی ہے کہ تمہارے میرے خاندان کے اوپر، میرے گھر والوں کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ وہ شاہ جہان سے کہتی ہے کہ ایک احسان اور کر دو مجھ پر، کہ مجھے وہ شخص ڈھونڈ کر دے دو
जो मेरी तलाक की वजह बना और मेरी बदनामी की वजह बना, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसमें शाहजहान अपने ख्यालात में कहता है कि मेहरो जी मैं कैसे उस शख्स को ढूंढ सकता हूँ। तो जिस पर मेहरो जवाब में कहती है कि क्यों ढूंढ कर नहीं ला सकते, अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो जिसके जवाब में शाहजहान कहता है कि मेहरो जी मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो शख्स मैं ही हूँ। ये जवाब सुनकर मेहरो शाहजहान के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। और नाज़रीन, आप लोग ये सीन देखने वाले हैं मेहरपोश ड्रामे की अगली इक़्सात में। नाज़रीन, आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगली इक़्सात में शाहजहान के बारे में मेहरो को और मास्टर साहब को पता चल जाएगा कि मेहरो की बर्बादी के पीछे शाहजहान का हाथ था। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि मेहरपोश ड्रामे की कास्ट में कौन कौन से बड़े सीनियर और मारूफ अदाकार शामिल हैं। नाज़रीन, मेहरपोश ड्रामे में जो मेहरो की वालिदा का किरदार अदा कर रही हैं, उनका असल नाम सानिया सईद है और शाहजहान का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम दानिश तैमूर है और मेहरो का नाम इस ड्रामे में आयज़ा खान है। जबकि शाहजहान का किरदार अदा करने वाले दानिश तैमूर असल हकीकत में रियल लाइफ में मेहरो के यानी आयज़ा खान के शौहर हैं। और नाज़रीन, आयज़ा खान और दानिश तैमूर पहली बार एक साथ एक ड्रामे में जलवागर हुए हैं। इस ड्रामे में नईम का किरदार अदा करने वाले एक्टर का नाम अली अब्बास है, जो कि पाकिस्तान के मशहूर और सुपरस्टार अदाकार अली अब्बास वसीम अब्बास के बेटे हैं। और ये तमाम अदाकार मेहरपोश ड्रामे में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। लीडिंग रोल अदा करने वाली आयज़ा खान और दानिश तैमूर हैं, जबकि इस ड्रामे में सपोर्टिंग किरदार अली अब्बास अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आगे चल के मेहरपोश ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाज़रीन, जैसे कि आपने ड्रामा मेहरपोश में देखा कि मेहरो खुदकुशी करने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपने ऊपर लगे हुए बदनामी के दाग को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि जब मैं खुदकुशी कर लूँगी तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और ये किस्सा भी सारा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ मेहरो के माँ बाप भी बहुत दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गए हैं अपनी बेटी के लिए कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही उस पर लगा बदनामी का दाग उसको धो सकते। और नाज़रीन, दूसरी तरफ इस ड्रामे में शाहजहान को ये ख्याल बार बार तंग कर रहा है, बार बार पशेमान कर रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। और शाहजहान को इस बात का डर भी लग रहा है कि अगर सारी हकीकत मास्टर साहब को पता चल गई तो उसके साथ क्या होगा और मेहरो का क्या रिएक्शन होगा और मास्टर साहब का क्या रिएक्शन होगा शाहजहान के साथ। शाहजहान के दोस्त ये सारी सच्चाई मास्टर साहब के साथ सामने बात करने से, बोलने से, उनको बताने से साफ इनकार कर देते हैं शाहजहान को। दूसरी तरफ नईम की जो माँ है वो नईम से बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, नईम से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नईम की माँ नईम से हर वक्त गिला करती रहती है कि तुमने उस मासूम की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, तुमने मेहरो के साथ अच्छा नहीं किया और तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरेगी और उसके वालिद साहब जो बहुत ज़्यादा बीमार थे और हॉस्पिटल में थे, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब उनकी बेटी शादी के अगले दिन ही तलाक के बाद अपने बाप के घर वापस चली जाती है। मगर नाज़रीन, आप देखेंगे कि नईम पर अपनी माँ की किसी बात का असर नहीं होता। वो उल्टा अपनी माँ को बेइज्जत करता रहता है और नईम अपनी माँ से कहता है कि आपको उस लड़की का एहसास है जो आपके लिए बिल्कुल गैर है और जो मैं आपको नज़र नहीं आता। आपको अपने बेटे से कोई हमदर्दी नहीं है, आपको अपना बेटा नज़र नहीं आता कि आपके बेटे के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है और आप इस बात का शुक्र अदा नहीं कर रही हैं कि टाइम से पहले ही मुझे पता चल गया और मैंने उस लड़की को फारिग कर दिया और मैंने उस लड़की को तलाक दे दी। और नाज़रीन, नईम की माँ नईम से कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी मासूम की जिंदगी को बर्बाद करो। नईम की माँ कहती है कि तुम इस तरह से बिना सबूत से कैसे उस लड़की को तलाक दे सकते हो, कैसे उसके किरदार पर बदनामी का दाग लगा सकते हो और तुम किस तरह से किसी की भी बातों में आकर तुमने उसको तलाक दे दी और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और जैसे कि नाज़रीन, आपने देखा कि नईम का दिल खराब करने में नईम की चच्ची का हाथ है क्योंकि वो अपनी भाभी से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनसे बदला लेने के चक्कर में नईम
नईम का घर बर्बाद कर दिया और अपनी भाभी से बदला लेने के लिए किसी मासूम की बेटी की जिंदगी खराब कर दी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेहरपोश की एपिसोड 6 का रिव्यू। ये तमाम सीन्स मेहरपोश की एपिसोड 6 में दिखाए गए हैं। और नाज़रीन, अगली एक शॉट्स में आप देखेंगे कि एक दिन नईम को मेहरों की पाक दामनी का एहसास हो ही जाएगा और वो एक दिन बहुत पछताएगा मेहरों को छोड़ने के बाद। तो और जब उसको ये सारी सच्चाई पता चलेगी नईम का, तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होगा कि उसने क्यों मेहरों की बात पे यकीन नहीं किया और किसी की बातों में आकर मेहरों को तलाक दे दी और किसी की मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नाज़रीन, अगले एक साथ में आप देखेंगे कि नईम बहुत ज़्यादा पछताएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा और कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मेहरों को वापस अपना ले। लेकिन नाज़रीन, अगले एक साथ में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नईम ने तो मेहरों को तलाक दे दी है। अब वो दोबारा उसको अपने पास नहीं रख सकता और मेहर दोबारा नईम से अब शादी नहीं कर सकती। नाज़रीन, इस प्रोमो के रिव्यू में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को पर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आप लोगों की मेहरपोश की एपिसोड 6 के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए इस तरह के रिव्यूज़ बना सकें। नाज़रीन, हमारा ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आए तो हमारी इस रिव्यू को, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेहरपोश ड्रामे की एपिसोड 6 में देखा कि मास्टर साहब शाहजहां से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह समझा और तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, तुमने मेरी बेटियों को ही बदनाम कर दिया, तुमने मेरी बेटियों पे ही कीचड़ उछाल दी। ये सब सुनकर शाहजहां बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा हैरत करता है। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि मास्टर साहब शाहजहां से कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो नाज़रीन, ये शाहजहां का ख्याल होता है जो वो सोच रहा होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये महज शाहजहां का ख्याल है। नाज़रीन, मेहरपोश ड्रामे की अगली एक साथ में क्या होने वाला है, आप लोग भी अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, मेहरपोश ड्रामे के एंड में आप देखेंगे कि मेहरा और शाहजहां की शादी हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और नईम मेहरा को तलाक देने के बाद जब उसको ये सारी सच्चाई का पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा पछताएगा कि उसने मेहरा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। वो मेहरा से आके माफ़ी मांगेगा और मेहरा के घर वालों से भी माफ़ी मांगेगा, मगर उसके घर वाले नईम को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेहरा की शाहजहां से शादी हो जाएगी